Good morning, students. Let us go through the exercise of chapter 4, Force and Pressure. The first one is the fill in the blanks, A part. First one is, for force to come into play, the two concerned bodies must dash with each other. So here, for force to come into play, the two concerned bodies must interact. Okay, so here you will write the answer, interact. Second one, in the game of cricket, the stumps fall when the ball strikes them. This is an example of a dash force. This is an example of a contact force. Okay, see, stumps fall when the ball actually strikes them. So there is a contact between the stumps and the ball. Even though this is actually a example of mechanical force, it is a type of contact force. Third one, to draw water from a well, we have to dash the rope, है ना. कुएं में से पानी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है रोप को, whether we have to push or pull, we have to pull the rope. Fourth one, an unbalanced force acting on a moving object may change its dash and or its dashed. See, unbalanced force जो है, जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेंगी तो क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकती है ऑब्जेक्ट की. ओके, और उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो सकती है, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक में चेंज इट्स स्पीड. ओके, स्पीड आ जाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट मूविंग है हमारा, तो उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है अगर अनबैलेंस फोर्सेस हैं तो. सेकेंडली यू कैन राइट डाउन, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकती है, अगर मूविंग है तो वो रेस्ट पे आ सकता है. ओके, यस. So speed and its state of motion. Fifth one, the force responsible for raising our body hair when we try to take off a terylene or polyester shirt in dry weather conditions is in dash force. है ना. आपने बहुत बारी एक्सपीरियंस किया होगा कि एकदम से मान लो अगर आपके बेड पे कोई बेड शीट है, वो टेरिलीन की है या पॉलिस्टर की है, ओके, सिंथेटिक है, उसको जैसे स्पीड से आप रिमूव करेंगे बेड से तो एक स्पार्क्स क्रैकलिंग साउंड आपने सुनी होगी. या समटाइम्स यू नो ड्यूरिंग ड्राई विंटर्स ऑल्सो व्हेन यू टेक ऑफ योर स्वेटर, ठीक है, नीचे आपकी कोई शर्ट हो सकती है जो पॉलिस्टर की टेरिलीन की है, उसके ऊपर से अगर आप स्वेटर एकदम से स्पीड से पुल करते हैं तो क्रैकलिंग साउंड आती है. सो दैट बेसिकली इंडिकेट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक force or electric force, you can write here. Sixth one, the atmospheric pressure dash as we move towards higher altitude. हायर एल्टीट्यूड का यहाँ पे मतलब है जैसे आप और ऊंचाइयों पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डेफिनेटली इट विल decrease. So the atmospheric pressure decreases as we move towards higher altitudes. Please fill these blanks and write in your notebooks these fill-ups. Next one, B part, take the correct choice for the following statements. So first one here, a batsman hits a cricket ball which then rolls on the level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball stops due to, है ना, जब एक बैट्समैन जो है क्रिकेट बॉल को हिट करता है तो बॉल जो है वो ग्राउंड के ऊपर कुछ टाइम के लिए मूव करती है, उसके बाद अपने आप वो रुक जाती है. तो रुकती क्यों है, बेसिकली इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है फ्रिक्शनल फोर्स. ग्राउंड और बॉल के सरफेस के बीच में ओके एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है. दैट मीन्स इट विल ट्राई टू अपोज द मोशन. जो रफनेस है ग्राउंड की और उस बॉल के सरफेस की, ओके, दैट कॉजेज दिस फोर्स. सो फ्रिक्शनल फोर्स. When two forces applied on an object are equal and opposite, then these forces. So forces अगर equal और opposite है तो वो balanced है. तो इस केस में क्या होगा एक्चुअली, इस केस में चार ऑप्शन दिए हैं बट द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डो नॉट मूव द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आपका कहीं भी मूव नहीं करेगा, रेस्ट पे तो रेस्ट पे, मोशन में तो इट विल बी ऑन सेम स्टेट, बट दे मे कॉज अ चेंज इन इट्स शेप, लेकिन उसकी शेप में वो बदलाव ला सकती हैं. सो आंसर विल बी डी फॉर दिस. Next, when two unbalanced forces act on a body in opposite directions,
Okay, unbalanced forces are acting in opposite direction. The net force is equal to. So net force हमेशा ही क्या रहेगी? Difference. Okay, C will be the answer. Difference between the two unbalanced forces F1 minus F2. Okay, or direction will be the direction of the larger force. Okay, so C is the answer. Next, fourth one. Nails have pointed ends. This results in a, जो कीलें होती हैं उनके जो एंड्स होते हैं बहुत ही पॉइंटेड, बहुत ही शार्प होते हैं. तो इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट आउटकम क्या होता है? इसका आउटकम ये होता है, दिस विल इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन देम. ओके, जो फोर्स उनके ऊपर, नेल्स के ऊपर एक्सर्ट की जाएगी, उसका इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा. ओके, नेक्स्ट, व्हेन यू प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर. ओके, ड्रॉपर जो है आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब्स में देखे होंगे, वो एक ग्लास ट्यूब होती है, बहुत ही पॉइंटेड सी. उसमें एक पीछे की साइड एक रबर का उसमें नोजल होता है. आई मीन उसका जो होल्डर पार्ट है दैट इज़ ऑफ रबर. ठीक है, तो दैट इज़ बल्ब एक्चुअली. तो उस बल्ब को जब हम प्रेस करेंगे, दबाते हैं बेसिकली, और दबा के जब हम उसकी जो टिप होती है, जो ग्लास ट्यूब की जो टिप है पतली सी, उसको हम अगर पानी के अंदर नीचे रखते हैं, और ठीक है, तो जब आप उस बल्ब को जो रबर का है उसको प्रेस करते हो ड्रॉपर के पीछे, तो और पानी के नीचे आप उसको रखते हो, तो उसमें जो हवा है वो बाहर निकलती हुई हमें दिखती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. द एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. ओके, और अगर आप पानी के अंदर ही वो उसका जो प्रेशर है बल्ब का वो रिलीज करते हो, तो अपने आप उसके अंदर पानी जो है वो फिल हो जाता है. द वाटर गेट्स फिल इन द ड्रॉपर. तो यहाँ पे जो राइज हो रहा है ड्रॉपर के अंदर पानी का, वो किस वजह से हुआ? कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है? लिक्विड प्रेशर, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, वेट ऑफ द बल्ब और एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो यहाँ पे आंसर वुड बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि जब आप उस बल्ब को प्रेस करते हो तो उस बल्ब में जो एयर प्रेजेंट है वो बाहर निकल जाती है, जिसको हम बबल्स के फॉर्म में देखेंगे पानी के अंदर. और जब वो एयर जैसे बाहर निकलती है, अंदर जो है बल्ब में प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है, और पानी के ऊपर बाहर आउटसाइड जो प्रेशर है वो ज़्यादा है. तो जब आप उस प्रेशर को रिलीज़ करेंगे बल्ब के ऊपर, तो क्या होता है एक्चुअली, पानी जो है अपने आप ही अंदर की तरफ पुश कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो यहाँ पे आंसर वुड बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेक्स्ट, state whether the following statements are true or false. So a force has to be specified both in terms of its magnitude as well as its direction. Yes, okay, because force जो है इसके लिए दोनों चीज़ें important है, उसकी strength और उसकी direction. ये एक vector quantity, so this is true. Second one, frictional force is an example of non-contact force. This is wrong, false. Okay, क्योंकि frictional force एक contact force होती है. So second is false. The effect of force may change by changing the direction of the applied force. Yes, we can change the effect of the force. बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि फोर्स जो है इसके लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो फोर्स का इफेक्ट अपने आप ही चेंज होगा. तो दिस इज ट्रू. नाउ, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट वुड अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट. नो, मैग्नेट में जो सेम पोल्स होती हैं उनमें अट्रैक्शन नहीं, उनमें रिपल्शन होता है. तो अगर एक मैग्नेट की नॉर्थ पोल है तो दूसरे की क्या है, साउथ पोल, तभी अट्रैक्शन होगा. नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट with another north pole of magnet, there would be no attraction, only repulsion. So this is false. We can reduce the pressure of a given force by increasing the area over which the force acts. Okay, yes, because pressure basically is defined as force acting per unit area. Okay, तो अगर एरिया जो है आपने इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा. सो दिस इज ट्रू, करेक्ट. So this is about ABC part. Please complete these, okay, and try to find the answers for the D part. Okay, D and E part we will discuss tomorrow. Thank you. See you in the next video.